ہوتی ہے۔ پریحہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریحہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحہ اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریحہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئی اور پریحہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحہ نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحہ کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحہ کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریحہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحہ اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریحہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئی اور پریحہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحہ نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحہ کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحہ کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریحہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحہ اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریحہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئی اور پریحہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحہ نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحہ کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحہ کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریحہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात
माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है।
حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہ کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریہ اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئی اور پریہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریہ نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریہ کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہ کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریہ اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئی اور پریہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریہ نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریہ کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہ کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریہ اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئی اور پریہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریہ نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریہ کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہ کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔
हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के अख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परिहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परिहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परिहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परिहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। परिहा जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के अख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परिहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परिहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परिहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परिहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। परिहा जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के अख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परिहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परिहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परिहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परिहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। परिहा जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के अख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं।
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों
हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परिहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परिहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परिहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परिहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। परिहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा परिहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है, जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है, जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परिहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परिहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परिहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परिहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है।